Hi students. Today I am just starting the topic of conservation of energy. Earlier we have covered the work energy theorem. We have gone through the conservative forces and non-conservative forces. Now after having the knowledge of these points, also we have discussed the concept of potential energy. So after discussing all these points, keeping in the mind, now let's start with the conservation of energy. And basically here we are studying conservation of mechanical energy. So conservation of mechanical energy. This is the topic. In this topic what we will cover, first we will come to know what is the conservation of mechanical energy, its proving. We will take some cases and with the help of those cases we will prove that mechanical energy is conserved. Also we will discover in what conditions the mechanical energy is conserved. We will go through some good questions, and earlier we had studied the work energy theorem. Also we will discuss that in which case conservation of mechanical energy will be useful and in which condition the work energy theorem will be used. So all these with the help of questions and the different cases we will try to understand. So here if I represent E is the mechanical energy, already had been discussed that the mechanical energy consists of the two energy, kinetic energy and potential energy. Now conservation of mechanical energy says that it should be noted that the sum of kinetic energy and the potential energy of any isolated system. Now what do you mean by isolated system? Any system where the net external force is zero. But remember, if you are considering the system, this is a system and this is of course made up of number of particles, and these are the external forces. Okay, so if I say these are the external forces F1, F2 and F3, and the sum of all the external forces, that is F1 plus F2 plus F3 is 0, then the total mechanical energy, that is E, is conserved. That it remains constant. Means you can say the sum of kinetic energy and potential energy remains constant. Further you can write that if I differentiate LHS and RHS both, so further you can say delta K plus delta U, and here RHS is constant. Imagine its value is 100. So if I write the delta or change in this value energy, so that will remain 0. I hope you are getting this point. Delta K means change in kinetic energy, delta U means change in potential energy, and since the sum of kinetic and potential remains constant, say this is 100, तो 100 अगर है तो वो 100 ही बना रहेगा, वो change नहीं होगा. So that change will remain 0. So this also you can write as a conservation of mechanical energy. But remember one condition. What is the condition? Condition is quite clear here. The net external force, sum of external force should be 0. This one. And since there are the internal, there are the particles, बहुत सारे particles हैं system में, and they are experiencing a force, तो इन particles के बीच में जो force लग रहा है, that I will call internal force. And those internal forces should be conservative. This is very important.
ये इंटरनल फोर्सेस कैसे होने चाहिए, कंजर्वेटिव होने चाहिए। तो एक बार क्विकली हम लोग रिकॉल कर लें कि क्या आप तक डिस्कस किए। तो हम लोगों ने ये देखा कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन देख रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे सिस्टम के ऊपर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो हो, या आप कह सकते हैं कि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम हो, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अंदर की कोई चीज़ बाहर ना जा सके, बाहर की कोई चीज़ अंदर ना आ सके, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो अगर हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई होगी वो कांस्टेंट बनी रहेगी, वो कंजर्व करेगी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। अगर हम दोनों LHS और RHS को डिफरेंशिएट करें तो ये लिख सकते हैं डेल्टा के मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चूंकि ये एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी जो कि कांस्टेंट रहनी है, तो वो चेंज नहीं होगा, तो दैट इज जीरो। तो ये आपका हो गया। अब किस कंडीशन में, तो कंडीशन ये हमेशा याद रखिएगा, कंडीशन नंबर 1 ये कि नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो, एंड कंडीशन नंबर 2 कि इंटरनल फोर्सेस जो होने चाहिए वो सिर्फ कंजर्वेटिव होने चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि देयर आर द मेनली 3 फोर्सेज जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कुछ केसेस में कंजर्वेटिव बिहेव करता है, कुछ केसेस में नॉन कंजर्वेटिव बिहेव करता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स लेटर। अब बात करते हैं कि इसकी प्रूविंग कैसे करें। ठीक है, हाउ टू प्रूव दिस। तो अब इसकी प्रूविंग पे आते हैं, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अब अगर हम इसके प्रूविंग की बात करें तो प्रूफ, तो पहले तो हम इसको प्रूफ करते हैं, फिर एक केस हम लोग लेते हैं, उस केस में भी हम इसको प्रूफ करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक बार फिर से हम देख लें कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेज दैट द टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लगें और एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जीरो रहे। चलिए इसका प्रूफ हम लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। So if I write work energy theorem, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ द फोर्सेस, यानी आपके सिस्टम पे, आपकी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अगर हम पिछले केस को देखें तो हमारे पास जो सिस्टम था, देयर वेयर फ्यू फोर्सेस विच वेयर एक्टिंग इंटरनली, दे वेयर कंजर्वेटिव, एंड कुछ फोर्सेस लग रहे थे जो कि एक्सटर्नल थे। सो हियर आई कैन राइट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। याद रखना है ये इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फर्दर आप ये कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको ये बताया गया था कि वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, एंड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इस इक्वेशन के हेल्प से यहां पे वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस वी कैन रिप्लेस work done by internal forces we can write minus delta u plus work done by external force equals to delta k, and now if you transfer, so you will get work done by external force is equals to delta k means change in kinetic energy, और minus delta u ट्रांसपोज कीजिए, so plus delta u. So this is also a very important equation we have raised, and this is of the very much use. ये बहुत ज्यादा यूज होगा. You can call the extended version of work energy theorem. Remember,
दिस इक्वेशन यू कैन कॉल एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जो आपका ओरिजिनल वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपको बताया गया है उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो लेकिन यहाँ पे आपका वर्क डन बाई ऑल नहीं है, ये है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेज, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एट्सेट्रा। ठीक है, फिलहाल हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करने के स्टेप में हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी वैलिड होता है, ये तभी वैलिड होता है जब आपका एक्सटर्नल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस का जो भी सम है वो हमेशा क्या बना रहे, जीरो बना रहे, तभी ये वैलिड होगा। ठीक है, तो अब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, आप आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम यही होता है कि बाहरी दुनिया से उसका कोई लेन देन ना हो, यानी कि बाहरी किसी एजेंट के द्वारा कोई वर्क उस पर ना हो रहा हो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाएगा देन व्हाट विल बी दिस विल बी जीरो, this will be equal to delta k plus delta u. So you get delta k plus delta u equals to 0. And this is the proof of conservation of mechanical energy. आप चाहें तो इसको थोड़ा और एलाबोरेट कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने डेल्टा के लिखा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये होगा। प्लस डेल्टा के का मतलब आप ये लिख सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू ये हो गया और डेल्टा के ये हो गया, और दोनों का चेंज हमेशा क्या बना रहेगा, चेंज जीरो रहेगा। यानी कि चेंज जीरो होने का मतलब कि उनका जो भी चेंज आएगा वो इनिशियल के ही बराबर रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लाइन और आगे अप्रोच करते हैं। सारे इनिशियल वाले को एक साइड में रखते हैं, सारे फाइनल वाले को एक साइड में रखते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया के एफ और प्लस यू एफ, ये हो गया, और माइनस यू आई और माइनस के आई को आर एच एस में ट्रांसपोज करें, सो दिस विल बी के आई प्लस यू आई। अब आप देख लीजिए यहां पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट वी कॉल मैकेनिकल एनर्जी, और ये फाइनल स्टेज की वैल्यूज हो गई, इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वी कॉल मैकेनिकल एनर्जी, और ये इनिशियल हो गई। तो इससे भी देख लीजिए ये प्रूव हो रहा है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि आपकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। दैट इज योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि हाउ टू प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और यहां पे मैंने हेल्प लिया है वर्क एनर्जी थ्योरम का। बस ये ध्यान रखने हैं इनके कंडीशंस को कि जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहां पे लगाएंगे। आप सबसे पहले देख लेंगे कि वो आइसोलेटेड सिस्टम रहे जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहे। दूसरी बात ये जरूर चेक कीजिएगा कि जो इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में वो सिर्फ कंजर्वेटिव ही होने चाहिए, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। अगर कहीं इंटरनल फोर्सेज यानी सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है, तब आप ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर फ्रिक्शन आ गया, तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग, ये प्रूफ हो गया, अब हम लोग एक केस लेते हैं और उस केस से समझेंगे कि क्या वहां पे मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट बना हुआ है कि नहीं। सो व्हाट इज द केस वी आर गोइंग टू टेक। अब ये केस देखिए,
केस ये है कि इमेजिन कीजिए कि किसी टावर से, ये आपका टावर हो गया, ये ग्राउंड है एंड दिस इज योर टावर, ठीक, ये टावर हो गया। टावर की हाइट हम दे देते हैं कैपिटल एच, और यहां से टावर के टॉप से एक ऑब्जेक्ट है जो इस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक। तो अगर ये ड्रॉप किया जा रहा है तो सबसे पहले देखिए कि यहां पे सिस्टम किसका है, क्या सिस्टम है कि सिंगल पार्टिकल है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो स्टोन मैं ड्रॉप कर रहा हूं ये तो अकेला है, लेकिन ये ग्रेविटी यानी अर्थ भी है इसके साथ, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही ये नीचे आ रहा है। तो अगेन यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है। किसका सिस्टम है? आपके स्टोन का प्लस अर्थ का, ठीक। अब हम बात करें कि अगर ये स्टोन और अर्थ का सिस्टम हो गया तो इस स्टोन पे कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो जितने लोग फ्री बॉडी डायग्राम की समझ रखते हैं वो जानेंगे कि अगर ये स्टोन है, इसका मास m है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऑफ कोर्स वो mg लग रहा है, और वो mg आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। यानी अर्थ और स्टोन के बीच में mg लग रहा है और वो किस कैटेगरी का है? कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक। कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि मैं इसको नहीं पकड़ रहा हूं, कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको होल्ड नहीं कर रहा है, सो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यानी इस केस में एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू आपका 0 है, और इंटरनल फोर्स के नाम पे आपका mg लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव है। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि इफ दिस stone keep on falling under the influence of gravity, so will the energy, mechanical energy during its path, due to its path, sorry, in the course, क्या ये कंजर्व करेगा कि नहीं। तो हम कंसीडर करते हैं दिस इज अ पॉइंट ए, यहां पे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। यहां पे एक रैंडमली मैंने किसी पोजीशन पे ले लिया बीच में कहीं पॉइंट बी, और ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, यहां पे एक पॉइंट ले लिया सी। तीनों पॉइंट पे हम मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और फाइनली चेक करेंगे कि ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी मींस सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, बी पे सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और सी पे सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अगर तीनों जगह पे ये वैल्यू सेम आ गया तो इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ये बात पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी वैलिड होगा, तभी काम करेगा जब वो सिस्टम के बीच में कंजर्वेटिव फोर्स लगे और एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसीडर करते हैं कि हाइट टावर की कैपिटल एच है, ठीक है। ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है यू कैन कंसीडर y1, और बी और सी के बीच का जो है यू कैन राइट h माइनस y1 और यू कैन राइट y2, दैट्स योर चॉइस। यानी y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू h, ठीक है। अब हम 1 बाई 1 आते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया एट पॉइंट ए, रिमेंबर हम मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो एट पॉइंट ए, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए ले लें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉप कर रहा हूं यहां पे, तो ड्रॉप करते समय यू का वैल्यू यहां पे क्या है? 0 है। ड्रॉप करते समय हम मानते हैं कि यू का वैल्यू 0, तो अगर यू 0 है यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 0, हाफ mu स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको ग्राउंड मानते हैं, अपना रिफरेंस लाइन मानते हैं। तो रिफरेंस लाइन से मेरे ग्राउंड से ए की ऊंचाई कैपिटल एच है, तो फार्मूला हो गया यहां पे प्लस mgh। तो दिस इज द एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट वी हैव गॉट, mg कैपिटल H, ठीक। ए पे एनर्जी, ए पे मेरा काम हो गया।
अब हम बी पे और सी पे सेम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एट बी, बी पे आ जाते हैं, ठीक ना। तो बी पे भी अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो अगेन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जब यहां से ड्रॉप किया गया है तो बी तक जब ये आ रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, और इमेजिन कर लीजिए कि जब ये यहां पे आया तो इसकी वेलोसिटी हो गई v1, ठीक है। ऑब्वियस है यहां पे तो u का वैल्यू 0 रहेगा, ड्रॉप किए हो, और यहां पे जैसे ही कुछ दूरी कवर करेगा तो यहां पे आ जाएगा, कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगा। एज्यूम दैट इस स्टोन के अंदर स्पीड आ गया v1, और हाइट इसकी ग्राउंड से, अब देख लें ये मैंने रेफरेंस लाइन लिया था ग्राउंड, तो ग्राउंड से इसकी हाइट हो गई y2। तो नाउ माय वैल्यू इज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m, वेयर m इज द मास ऑफ दिस स्टोन, ठीक ना, एंड इट्स स्पीड एट पॉइंट b इज v1, तो हाफ m v1 स्क्वायर, एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, तो m g, और पॉइंट बी की हाइट जो अपने ग्राउंड से यानी रेफरेंस लाइन से देखी जाए तो ये वैल्यू दी गई है y2, तो दिस इज y2। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे तो मैकेनिकल एनर्जी इतनी आई, यहां पे इतनी आई, तो ये सेम तो आया नहीं, सेम तो दिख नहीं रहा है। तो यहीं पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक। अब मैं यहां पे आपको एक रेफरेंस देता हूं कि सिंस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यूज करें तो आता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अंडर द ग्रेविटी नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये प्लस gh। v फाइनल वेलोसिटी हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी बी पे मैंने लिया है, तो बी पे इसकी फाइनल, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। स्टार्ट यहां से हुआ तो इनिशियल डेटा यहां से लेंगे, और हम बी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी को हम फाइनल डेटा लेंगे। तो ये वैल्यू हो गया v1 फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू यहां पे 0 प्लस 2g, और h का वैल्यू यानी हाइट या डिस्प्लेसमेंट आप कहिएगा, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आप देख लीजिए, ए से बी की जर्नी है, ये पूरी जर्नी आपकी कहां से कहां तक की है, फ्रॉम ए टू बी। तो ए आपका इनिशियल पोजीशन हो गया और बी फाइनल पोजीशन हो गया। ए पे इनिशियल वैल्यू 0 स्पीड का, बी पे फाइनल वेलोसिटी v1 प्लस 2g, और ए और बी के बीच की दूर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, वो है y1, तो 2g y1, ये हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर हम यहां पे रख देते हैं तो ये हो गया 1/2 m, और v1 स्क्वायर यहां से उठाए तो आ गया 2gy1, तो ये हो गया 2gy1। याद रखिएगा v1 का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दिया, प्लस mgy2। अब देखिए तो सिंपल हो जाएगा, आप खुद वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ये सिंपल कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो एनर्जी 2 कैंसिल, दिस इज mgy1 एंड दिस इज mgy2। पॉज कीजिए वीडियो, खुद कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये हो गया mg कॉमन, बचा आपका y1 प्लस y2, एंड अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन, मेरे केस के अनुसार y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू h। तो यहां पे भी आपकी टोटल एनर्जी आ गई mgh, और a पे भी टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh, ये देख लीजिए। तो दो जगह पे तो मैंने प्रूव कर दिया कि ड्यूरिंग फ्री फॉल, याद रखिएगा फ्री फॉल है जहां पे सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो दोनों पॉइंट्स पे ए और बी पे तो प्रूव हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी पे हम ध्यान देते हैं। तो नाउ एट सी, तो एट सी पे आ गए,
सी यहाँ पे जब जमीन को ये टच कर रहा है। तो इमेजिन किया कि जब ये जमीन को टच कर रहा है तो उस समय टकराते समय इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक, नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी E, अगेन सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2m, और जब ये जमीन से टकरा रहा है, टकराते समय इसकी वेलोसिटी v है, तो दिस इज v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने ग्राउंड और रिफरेंस इसको चूज किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, और यहां पे जब ये जमीन से टकरा रहा है तो इसकी हाइट आपकी 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो गया 0। तो यहां पे आपकी जो टोटल एनर्जी आई मैकेनिकल, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन बाकी दो केसेस में आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी mgh आया। तो अगेन अब थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए, और आप लोग पहले कीजिए इसको, कोशिश कीजिए इसको कैसे सॉल्व करें ताकि इन दो इक्वेशंस के इक्विवेलेंट या इक्वल हो जाए। चलिए अब यहां पे कंसीडर कीजिए, आपने बॉडी ड्रॉप किया था ए से और अब आप पहुंच गए हैं सी पे। तो ए से सी की जर्नी देखिए, तो ए आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, सी फाइनल पोजीशन हो गया। अगेन चूज द थर्ड इक्वेशन, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gh। ठीक, h आपका वर्टिकल हाइट जो ट्रेवल किया है बॉडी ने, बॉडी नीचे से ऊपर से नीचे आते समय जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, दैट इज h। सी पे जो वेलोसिटी है वो हो गई फाइनल वेलोसिटी, दैट आई हैव नोटेड हियर v ओनली, तो v²। ए पे जो वेलोसिटी है वो हो गई इनिशियल वेलोसिटी यानी u, तो ए पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज प्लस 2g। और ए से सी तक की जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, वो ए से सी तक की हाइट कैपिटल H से दिखाई गई है, तो दैट इज कैपिटल H। तो वैल्यू ऑफ v² इज नाउ 2gh। अब ये वैल्यू ऑफ v² आप रिप्लेस कीजिए इस इक्वेशन में, तो देयरफॉर your energy at C equals to 1/2m and v² now replaced by this 2gh। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2 and 2 कैंसिल, एंड नाउ फाइनल लाइन इक्वल्स टू mgh। देख लीजिए तीनों पोजीशन पे पॉइंट A B C ड्यूरिंग द फ्री fall of a body, the total mechanical energy always remains constant। हमेशा ये वैल्यू क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। सो दिस वाज वन केस वेयर आई हैड आस्क्ड शो दैट, मेरा क्वेश्चन क्या यहां पे रहेगा, मेरा क्वेश्चन ये था कि शो दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक, अब एक केस मैं आप लोगों के लिए देता हूं, उस पे आप लोग वर्क कीजिए। शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विथ सम इनिशियल स्पीड u। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेकेंड केस, सेकेंड क्वेश्चन दैट यू शुड अटेम्प्ट। मोडस ऑपरेंडी मैं यहां पे समझा चुका, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अ स्टोन ऑफ मास m और एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, और हम ये बात करने जा रहे हैं कि कब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का यूज करेंगे और कब वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम तो मैंने जैसे बता चुका हूं कि ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, हाँ, जहां पे कुछ भी काम ना करे वहां पे इसका यूज कीजिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, अब ऑल द फोर्सेज में कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑल काइंड ऑफ नॉर्मल, फ्रिक्शन, सब कुछ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
हमने इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी देख लिया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्क है और ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, ठीक ना। जहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा, जहाँ पे विस्कस फोर्सेस काम करेंगे, जहाँ पे ग्रेविटी काम करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक काम करे, स्प्रिंग फोर्सेस काम करें, हर जगह पे ये काम करेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये मैं सिर्फ तभी यूज करूंगा जब मैं बड़ी क्लियर हो जाऊंगा कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम ना करे, ठीक। और क्लियर करूं और प्रिसाइज बोलूं तो वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर आपके क्वेश्चन में, आपके प्रॉब्लम में, आपके केस में फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, देन डोंट यूज दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल मत यूज कीजिए। इसका तभी इस्तेमाल कीजिए जब आप कंफर्म हो जाइए कि कोई यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। और ये तो रहा रामबाण, ये तो आप हर जगह यूज कर सकते हैं, फ्रिक्शन रहे ना रहे सब जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम सिंपल स्टेज उठाते हैं, सिंपल केस लगाते हैं। ये हमारा एकदम सिंपल केस है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक, स्मूथ सरफेस है। पहले मैंने डिस्क्लेमर दे दिया कि ये स्मूथ सरफेस है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके पास शुरू से ही कोई वेलोसिटी है, से v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और अभी ये आपके रिफरेंस लाइन से, मैं रिफरेंस लाइन बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि ये ग्राउंड हो गया आपका, ठीक है। यहां से इसकी जो ऊंचाई है, ठीक ना, ये मैं ले लेता हूं 2 मीटर। और ये जो आपका लेवल है, दिस लेवल आई एम कंसिडरिंग 1 मीटर। अब ये बॉल यहां से ड्रॉप किया, ये बॉल यहां से मूव करता हुआ आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आया। और आपको पता करना है कि जब ये बॉल इस सरफेस को छोड़ेगा तो किस वेलोसिटी से ये यहां से आगे निकलेगा, ठीक, किस वेलोसिटी से निकलेगा। तो अब यहां पे सबसे पहली बात आप नोटिस कीजिए कि स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है ये, ठीक, फ्रिक्शन नहीं है। तो आप बिंदास आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो लेबल दिस पॉइंट एज ए, लेबल दिस पॉइंट एज बी एंड गिव द रेफरेंस बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये स्टेटमेंट देकर, एंड देन यू स्टार्ट एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। अब कौन सी एनर्जी भाई, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो यहां पे देख लीजिए ए पे मास इसका मैंने बता दिया कि बॉडी का मास आप m ले लो, अगर नहीं दिया हूं तो m ले लीजिए, ठीक है। 1 kg 2 kg कुछ भी दिया जा सकता है, 100 ग्राम वगैरह कुछ भी दे दिया, मैंने m ले लिया। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/2 m, और a पे इसकी स्पीड 5 है तो mv स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर दैट इज 25। पोटेंशियल एनर्जी एट a, तो आपके रिफरेंस लाइन से इसकी जो ऊंचाई है ये है 2 मीटर, तो हो गया m g और h का वैल्यू हो गया 2 मीटर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट b। b पे जब आया तो इसकी स्पीड मैंने मान ली v, तो ये हो गया हाफ m और v स्क्वायर, v हमें कैलकुलेट करना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट b, तो अगेन फार्मूला mgh, m g और b पे उस स्टोन की ऊंचाई है 1 मीटर, तो इंटू 1। अब देख लीजिए m तो कैंसिल हो रहा है,
So this become 25/2, that is 12.5. m कैंसिल हो गया कॉमन लेकर। g का वैल्यू अगर हम 10 कंसीडर करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, तो ये हो गया आपका 5, सॉरी g का वैल्यू 10, तो 10 टू ज़ 20, दिस इज 20, ठीक है, इक्वल्स टू m कैंसिल हो गया, दिस इज v स्क्वायर अपॉन 2, v कैलकुलेट करना है, m कैंसिल हो गया, g का वैल्यू 10, तो +10। अब यहां से सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए खुद ही, और v का कैलकुलेशन कीजिए। चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। सो दिस इज योर 32.5 माइनस 10, और 2 डिवाइड हो रहा है तो इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिस इज 22.5, ये आ गया 22.5, 10 माइनस करने के बाद इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 45, इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो जो v का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √45, दैट इज 3√5 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां से जब बॉडी रिलीज होगी तो उसके पास इतनी स्पीड होगी, इतनी स्पीड से ये रिलीज होगी, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे एकदम ये लेवल 1 का क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान देने वाली बात बस इतनी थी कि इस पूरे रास्ते में कहीं फ्रिक्शन या कोई विस्कस फोर्स या एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तब हम वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करते। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों के क्वेश्चंस को डील करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। ओके, रिवाइज द टॉपिक and established. Thank you.